Hello everyone, welcome to Unacademy's Topper series. So today we have with us Priyanka Chandel, who is an AIR 111 of NORCET 2022, and this has been possible via Unacademy's newly launched nursing channel called Let's Crack Nursing Exams. So I'll tell you a little more about the channel. This channel has been launched recently, and you will get a lot of curated content from experts here. If you are preparing for nursing exams or NORCET, this is the channel that is going to be your go-to channel. And sooner or later, we would be having a lot of content, interesting content, where we will be talking with experts, AIRs, people who have been there in the medical field, nurses, etc. So this is about the channel, and you must definitely go and check out the channel. And yeah, let's talk about Priyanka right now. So we have with us Priyanka, as you already know, that she's an AIR 111. She has done her BSc in nursing from Jalandhar and is currently serving as a nursing officer in Delhi. So welcome to Academy, Priyanka. Thank you, Raghav. Hi. So hello. So Priyanka, tell us a little more about yourself for our viewers. उन्हें बताओ कि आप कहाँ से हो और आपने क्या किया और आप currently क्या कर रहे हो. So Raghav, thank you for giving me this opportunity first. And then I'm from Himachal. मैंने अपना BSc Nursing किया है Army College of Nursing, Jalandhar. And presently I'm working as a nursing officer in Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. That's lovely. So you have, how long have you been serving as a nursing officer now? I've just joined, like I've given the nursery and then I've just joined in November. So how does it feel? कैसा लग रहा है? It's good. It's nice being with people, serving people, taking care of people. It's good. The experience is really nice as so far. That's nice. So speaking of today's session, Priyanka, this is a topper series. So let's get straight to where we want this channel and this entire video to go. How does it feel like to be an AIR 111? Did you expect it in the first place? आपको पता था कि आप एक रैंक ले आएंगे? शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो AIR ले आएगा, बट हाँ मतलब AIR लाने के बाद इट फील्स रियली गुड. अच्छा तो लगता ही है, बट आई डोंट थिंक कोई एक्सपेक्ट करता है कि AIR आएगा, पर आने के बाद इट फील्स रियली 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 नाइस. On the तो top of आपने, the world type feeling. so even you did not expect it. No, of course not. Even I, at least I didn't expect it. I don't know about others. What was your first reaction when you got to know, or your family's first reaction जब उन्हें पता चला कि आप AIR 111 है? They didn't understand that AIR 111 is a very big thing, but I was very happy about it. कि चलो, at least it's fine, it's good. I can get any hospital I want to get into. So I was really happy. They were happy that okay, fine, it's cleared and she will be working soon. That's all. Wow, that's nice. Yeah. So to get to this feeling, I'm sure आपको बहुत मेहनत, a lot of hard work and studying etc. sacrifices वगैरह बहुत कुछ हुआ होगा. So let's go to that journey. Tell us a little more about कि आपकी journey through cracking NORCET कैसी थी? आपने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे की, या आपका कोई source of preparation था, primary preparation source? मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी जुलाई में. एग्जाम सितंबर में था, नहीं जून लास्ट में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मुझे क्लियर था कि मेरे पास बहुत कम टाइम है. सो मैंने अपने सोर्सेज को सोच रखा था कि 3 बेसिक सोर्सेज रहते हैं विच आर वेरी पॉपुलर. एक इज टारगेट हाई जो रेफरेंस बुक्स है, वन इज PR यादव एंड वन इज सॉन्डर्स एनक्लेक्स. मेरे पास 3 पढ़ने का टाइम नहीं था और उन्हें रिवाइज करने का, तो मैंने 2 बुक्स चूज करी. वन वाज टारगेट हाई एंड सेकंड वाज PR यादव. तो टारगेट हाई में आपके पास कंटेंट और MCQs दोनों होते हैं, तो आपके लिए चीज़ अच्छी हो जाती है. एंड PR यादव में आपके पास प्रीवियस ईयर जैसे MCQs होते हैं, तो वहाँ से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं. तो मतलब मेरा प्राइमरी सोर्स वही दोनों थे. उसके अलावा टारगेट हाई में द थिंग इज कि सी व्हेन यू रीड द कंटेंट और उसके बाद आप MCQs करोगे, तो MCQ से बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी जो कंटेंट में उन्होंने नहीं पढ़ाई. तो दैट इज अ न्यू टॉपिक देयर. तो वहीं से मैं उस टॉपिक को गूगल सर्च करके वहीं पे नोट्स बना के आई यूज्ड टू कीप इट देयर कि जब रिवीजन होगा तो ऐसे आऊंगी और एक टॉपिक जो नहीं पीछे पढ़ा है वो आगे पढ़ के रिवाइज हो जाएगा. सो वही 2 बुक्स और मतलब थोड़ा गूगल का ये सब नोट्स बना के आई डिड इट दैट वे ओनली. और सिर्फ ऑब्सगाइन हमारी देयर इज अ बुक हमारी बुक रहती है DC तत्ता. सो आई डिड इट फ्रॉम राइट देयर ओनली बिकॉज मेरा ऑब्सगाइन पहले से ही अच्छा था. So I wanted to read the subject thoroughly, so I did it from there. Otherwise, target high and PR others.
मतलब वो दो सोर्सेज मेरे मेन सोर्सेज थे। एनक्लेक्स पढ़ने का टाइम नहीं था मेरे पास, अदरवाइज दैट इज आल्सो अ वेरी नाइस बुक फॉर प्रिपरेशन। So your major sources were these two books and Google. या Okay. Well, so it's not like you need to have any like a lot of content. What is available in the market is also pretty uh, enough if you are actually studying well, right? सी ऐसा नहीं है, मतलब एक्चुअली नर्सिंग में इट इज लाइक आपको 4 साल में जो आपने कॉलेज में पढ़ा, यू हैव टू रीड दैट अगेन फॉर द एग्जाम, बट Correct. वैसा आप कर नहीं पाते हो। तो आपको कोई रेफरेंस बुक्स चाहिए, कोई कंडेंस सी चीज चाहिए जिसमें चीजें हों और कॉन्सेप्ट्स वापस रिवाइज हो जाएं। So तो these are the मतलब two उस books. या तो मतलब ऐसे, और एनक्लिक्स में भी बैटर वैसे ही कंडेंस्ड होता है, या फिर पीपल टेक सम कोर्सेज एज वेल, तो मतलब उधर भी कंडेंस्ड मिलता है। तो मतलब यू कहीं से भी आपको एक कंडेंस सी चीज मिले जहाँ से सब रिविजन हो जाए, बिकॉज यूर ऑलरेडी रीडिंग एवरीथिंग। आप 4 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हो सब कुछ, तो सिर्फ रिविजन ही करना है कायदे से। So at any point in time, क्या आपने कोई कोर्स लिए, क्रैश कोर्स या थ्योरी कोर्स? मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए था, तो मैंने एक टेस्ट सीरीज लिया था। इट हैड 40 टेस्ट, तो मतलब मेरे पास 3 ही महीने थे, तो मुझे पता था कि इसी में याद करना है, इसी में रिवाइज करना है, इसी में टेस्ट भी देने हैं। सो फर्स्ट 2 मंथ्स मैंने मतलब लर्निंग एंड रिविजन का रखा। थर्ड मंथ आई वाज क्लियर कि टेस्ट देने हैं, तो मतलब आई टू गेट टेस्ट क्रैश कोर्स। थर्ड मंथ में मैंने टेस्ट दिए हैं, मतलब आई यूज्ड टू की 4-5 आवर्स अ डे, और टेस्ट रोज टेस्ट दे के उनको वहीं के वहीं याद कर लो टेस्ट को भी, बिकॉज कायदे से वो मैटर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। Right. तो वैसे वैसे करके चीजें कवर हो जाती है। मतलब टेस्ट सीरीज वाज रियली हेल्पफुल, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप पढ़ते हो और आपने उस मैटर में नहीं पढ़ रखी होती जो आपने पढ़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रेफरेंस बुक ही प्रेफर कर रहे हो, आपने कोई थरा कंटेंट वाली बुक नहीं पढ़ रहे हो। सो जो आप टेस्ट सीरीज देते हैं, आपको बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के स्पेशली आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं जो आपने कंटेंट में नहीं पढ़े होते हैं। आप उनको वहीं के वहीं याद कर लोगे तो वो चीज़ हेल्प करती है, और मेरे को भी बहुत हेल्प करी, बिकॉज 3-4 क्वेश्चंस डायरेक्टली मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कंटेंट में कहीं होंगे या मैंने पढ़े नहीं होंगे, बट मेरी टेस्ट सीरीज थे वो थे, तो मतलब इट वाज फाइन फॉर मी, इट वर्कड आउट वेल फॉर मी। Okay, so you have to basically आपको अपने हिसाब से you have to pick and choose your combination and whatever suits your best you should do that. एग्जैक्टली। तो मतलब व्हाट इज योर फोटो उस हिसाब से देखे, बिकॉज आई न्यू मेरा कंटेंट पहले से ही बहुत अच्छा था, मतलब मेरे बेसिक्स एंड ऑल सब कॉलेज से ही सही था, तो मुझे ये पता था कि मुझे लर्न और रिविजन में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट टाइम मैंने नॉर्सेट दिया, तो मुझे उस चीज़ का एंजाइटी था कि पता नहीं एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो मेरा टेस्ट सीरीज पे इसलिए फोकस बहुत अच्छा था। That's nice. तभी यार 111 आया। So Maybe. so speaking of, आपने बताया अभी that you had started your preparations 3 months prior to Yeah. NORCET. So that's not like probably what most people do, but since आपने इतने कम टाइम में किया and you got a rank and you cracked NORCET exams also, take us through your daily schedule. आप क्या प्लान करते थे, कैसे करते थे, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? स्टार्टिंग में आई वांटेड टू जज कि मतलब कितने घंटे मैं पढ़ पाऊंगी, कितना कंटेंट पढ़ पाऊंगी, कितने घंटे पढ़ पाऊंगी। तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन आई डिड इट लाइक जितना पढ़ पा रही हूँ देखो, तो आई फिगर्ड आउट 3-4 दिन में कि 7-8 घंटे ही एक दिन में पढ़ पा रही हूँ, उसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है 7-8 घंटे पढ़ेंगे, एंड हमारे जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उनमें ना टॉपिक्स लाइक चैप्टर्स बड़े बड़े छोटे छोटे पे कॉम्प्रेस करके दिए होते हैं, तो आई डिसाइडेड कि एक दिन एक सब्जेक्ट, या फिर अगर छोटा सब्जेक्ट है तो एक दिन में कर लो, बड़ा सब्जेक्ट है तो 3 दिन में कर लो। मतलब दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। सिर्फ एक सब्जेक्ट इज लाइक एमएसएन इज रियली बिग, तो मतलब उसके टॉपिक्स मैंने एक लंबे टाइम में करे होंगे, अदरवाइज माय थिंग वाज 3 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर दो। एंड 7-8 घंटे पढ़ती थी। उसके बाद मैंने देखा कि यार उसके बाद भी बहुत टाइम बचता है 7-8 घंटे के बाद, पर दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा। सो व्हाट आई डिड वाज कि 7-8 घंटे के बाद ब्रेक लेके मैंने टेस्ट सीरीज करना शुरू कर दिया सेकेंड मंथ में। मतलब आई डिडंट यूज्ड टू डू इट रेगुलरली, मतलब अगर आज मन कर रहा है कि चलो अभी दिमाग में थोड़ा जा सकता है, तो टेस्ट सीरीज 1 month to NORCET, yes 1 month to नहीं 1.5 or 2 months to NORCET, yeah second month exactly. So I didn't used to do it regularly मैंने थर्ड मंथ में ही किया टेस्ट सीरीज के अपने 3-4 घंटे लगा के, तो आई यूज्ड टू डू। तो उसके पहले टेस्ट सीरीज के बाद ये चीज नोटिस करी कि टेस्ट करते ज़्यादा दिमाग में लगता है आपको, बिकॉज इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर, इट्स वेरी सिंपल। और उसके बाद मतलब 1.5 घंटे में आपका टेस्ट हो जाता है, 2 घंटे में तो दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद वापस 3-4 घंटे टेस्ट के आंसर्स पढ़ लो, तो दैट उस वे में मतलब चीजें वैसे चलती थी। मतलब 7-8 घंटे पढ़ के इट्स फाइन, हो जाता है उतने में, उससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते मुझे ऐसा लगता है शायद। हाँ, each to its own, right? Yeah.
यूजुअली तो नॉर्सेट की प्रिपरेशन थोड़ी लंबी होती है, बट फॉर आवर व्यूअर्स, अगर कोई लेट से ही चालू कर रहा है, सो दैट्स नॉट द केस कि आप नहीं कर सकते. लाइक प्रियंका हैज हाँ मेंशन्ड दैट इफ यू allocate टाइम टू each subjects, आप कोई पर्टिकुलर दिन दे रहे हो तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डेफिनेटली या क्रैक इट. एंड वन मोर थिंग, लाइक आई बिलीव जो मुझे वर्क करी है चीज वो ये करी है कि मैंने ये सोच रखा था आई विल नॉट लीव एनी सब्जेक्ट. मतलब कोई भी नहीं छोड़ूंगी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा. बिकॉज मैंने टेस्ट सीरीज में ये नोटिस करा जब मैंने सेकंड मंथ में करनी स्टार्ट करी, जब मैं कभी हफ्ते में 2 करती थी ऐसे कुछ, कि हर छोटे छोटे सब्जेक्ट से भी एक एक 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. तो अगर मेरे पास 4-5 छोटे सब्जेक्ट है, मतलब 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन इज अ बिग डील. एक नंबर से बहुत रैंक ऊपर नीचे होता है. सो वहां से आई डिसाइडेड, पहले मेरा ये था कि बड़े बड़े सब्जेक्ट करूंगी, इतना टाइम नहीं है, छोटे नहीं करूंगी. बट फ्रॉम टेस्ट सीरीज आई रियलाइज कि छोटे सब्जेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. 5-6-7 नंबर वहीं से बनते हैं. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सब सब्जेक्ट करूंगी, एंड आई डिड एवरी सब्जेक्ट पूरी रेफरेंस बुक से. यस, कि थोड़ा थोड़ा भी पढ़ूंगी, बट सब पढ़ूंगी, एमसीक्यू सबके करूंगी, और जितना उन रेफरेंस बुक्स में वो तो सब करूंगी, बाहर से चाहे कुछ ना पढ़ूं ऐसा. सो आपने बेस्ड ऑन मेजर सब्जेक्ट कौन से, माइनर सब्जेक्ट कौन से, ऐसे प्रायोरिटाइज किया या वेटेज के हिसाब से आपने देखा? नहीं, सी मेजर सब्जेक्ट्स लाइक हमारे फील्ड में इट इज लाइक देयर आर सम बिग सब्जेक्ट्स इन एवरी ईयर. जैसे माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. पर उनमें से भी लाइक एक एक क्वेश्चन आता है. बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स है साइकेट्री, एमएसएन, ऑब्सगाइन, में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सो मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि पहले बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कवर करूंगी, क्योंकि मेरा पहले तो स्ट्रैटेजी थी ही नहीं कि मुझे छोटे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं. मेरा था कि बड़े सब्जेक्ट भी खत्म करूंगी और उन्हीं को पढ़ूंगी. छोटे में से 1-2 क्वेश्चन आएंगे भी तो आई विल लीव इट, मतलब देखेंगे टाइम बचेगा तो. बट अच्छी बात ये थी कि मेरे बड़े सब्जेक्ट का बेसिक्स बहुत क्लियर था, तो मेरे जल्दी कवर हो गए वो, मतलब 1.5 महीने में वो सब खत्म हो गया. तो फिर उसके बाद मैंने छोटे सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करे, और तब तक मैं रियलाइज कर चुकी थी कि पढ़ना बहुत जरूरी है उन्हें. सो ऐसे करके आई डिड इट दैट वे. So one good takeaway is कि आप अगर कुछ स्टार्ट में भी प्लान कर रहे हो and through the way if you realize something, it's always better to change your plan and make improvement. या एग्जैक्टली. मतलब जितना आपको रियलाइज होती सारी चीजें, उस हिसाब से भी चीजों को चेंज करते रहो. तो क्या आप कोई स्पेसिफिक, नाउ दैट यू हैड क्रिस्प एंड क्लियर प्लान्स, क्या आप कोई स्पेसिफिक टारगेट सेट करके करते थे, लाइक ये डे टारगेट हो गया या वीकली हो गया, मंथली हो गया, ऐसा कुछ आपने कभी किया? सी आई एम नॉट दैट स्टूडेंट जो बहुत प्रेशर में पढ़ सकता है, मतलब मैं अपने मन से पढ़ने वाले इंसान हूँ. सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि 3 दिन में, जैसे कि मुझे अगर 3 दिन में पीडियाट्रिक्स खत्म करना है तो 3 दिन में खत्म करना है. सो आई न्यू कि 3 दिन में करना है. तो अगर आज मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो मैं अपने आप को पहले थोड़ा सांत्वना देने की कोशिश करूंगी कि चलो पढ़ लेते हैं. पर अगर नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है बुक खोल के बैठने का, बिकॉज यू नो कि वो दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है. तो बेटर टेक योर फ्री टाइम फॉर दैट टाइम, 2 घंटे 3 घंटे कुछ कर लो, कुछ देख लो, उसके बाद पढ़ लो वापस. आई यूज्ड टू कीप अ टारगेट फॉर 3 days कि 3 दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है. सब्जेक्ट वाइज टारगेट आई यूज्ड टू कीप. जैसे एमएसएन इट टुक मी अ वीक टू कंप्लीट इट, तो आई यूज्ड टू कीप अ वीक कि 1 वीक में खत्म करना है. उस वीक के हिसाब से डिवाइड कर लो चैप्टर्स, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन में तुम्हारे पास कितना कंटेंट आ रहा है पढ़ने के लिए, तो उतना पढ़ लो. आई यूज्ड टू डू इट लाइक दैट. आपका मन नहीं भी करता हो तो आप बाद में उसको कॉम्पेंसेट कर लेते थे. हाँ, आई यूज्ड टू कॉम्पेंसेट इट. यस, एग्जैक्टली. ओके, सो यू वुड हैव टू. Yeah, if you have to cover something, then आपको by hook or crook you need to ensure that you get आज there. पढ़ने का मन नहीं है तो मैं कल 7-8 घंटे की जगह 10-11 घंटे पढ़ लूंगी कि मतलब यार ये खत्म तो करना ही है, मेरे सर पे एग्जाम है, ऐसे करके. At the back of mind वो चल रहा था कि मुझे ये इतने टाइम में खत्म करना है. खत्म करना है, एग्जैक्टली. And like you mentioned this one thing कि अगर मेरा मूड नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो this is one sort of a challenge which probably might come to your way जब आप पढ़ रहे हो. बहुत लोग होते हैं जो चालू कर देते हैं and may not be able to take it through the exam. 10 दिन या 1 महीना पढ़ के छोड़ देते हैं. ऐसे बहुत सारे भी challenges आते हैं in nursing aspirants career. आपके कोई specific challenges थे, और if not yours, आपको कोई ऐसे challenges पता है which are bound to come, like take us through some challenges that you faced in your journey. See, I believe if you're preparing for any exam, तो सबसे पहला चैलेंज तो ये होता है खुद के दिमाग को उस काम में रखना कि it's fine, I'm studying, I'll clear it. Because nobody feels it like they'll clear it, no? Everybody has that fear कि पढ़ रही हो, होगा या नहीं होगा. And moreover, like I told you, हमारा syllabus बहुत vast होता है, तो it is not like condensed कि यहीं से आएगा, if I'm reading this reference book कि यहीं से पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता है. You're just reading it कि तुम्हारा revision हो जाए. So, आर यू इन सिंक कि मतलब जितना सब पढ़ रहे हो उतना तुम पढ़ रहे हो? बिकॉज मैंने कहीं से क्रैश कोर्स नहीं लिया था, तो आई हैड दैट थिंग आल्सो इन माइंड कि ना मैंने कहीं से क्रैश कोर्स नहीं लिया है,
एंड मतलब क्या पता वो लोग एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ा रहे हो, मैंने इतना लेट स्टार्ट था, दैट थिंग कम्स इनटू माइंड आई थिंक इन एवरी एस्पिरेंट। दूसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होती है वो होती है रोज बैठ के पढ़ना, लाइक गिविंग दैट मच टाइम एवरी डे कि बैठना है बिकॉज आफ्टर 3-4 डेज आपको फील होता है कि यार कुछ करना है एवरीबडी अराउंड यू इज रोमिंग अराउंड, कुछ कर रहे हैं तो मतलब उस चीज के भी इन सिंक रहना इट इज अ बिट डिफिकल्ट। और उन सब चीजों को थोड़ा दिल को संभाल लो कि चलो यार 3 ही महीने हैं, मतलब आई यूज्ड टू डू दिस, मेरे पास 3 ही महीने थे तो आई यूज्ड टू गिव माय सेल्फ दिस थिंग कि 3 ही महीने हैं इस वाली बात को लेके, तो कि एवरीबडी इज डूइंग रियली फाइन। और बात रही दिस फैक्टर की मतलब विल आई बी एबल टू डू इट, तो मैंने छोड़ दिया ये सोचना और क्या करती कि दिस थॉट यू फोकस्ड ऑन द प्रोसेस। हाँ, आई मेरी मॉम ने मुझे समझाया कि इट्स ओके यू स्टडी, उसके बाद देखेंगे जो होगा, तो ऐसे पढ़ने में तो ध्यान दे, ऐसे 1-2 घंटा रोज का यही स्ट्रेस में बैठे रहेगी तो कैसे होगा। सो आई फोकस्ड ऑन द प्रोसेस, आई स्टॉप्ड फोकसिंग ऑन द रिजल्ट कि भाई छोड़ दो। A lot of people say that, right? Process पे focus करो, result नहीं। But it is difficult in practice. It is difficult when you are actually going through that phase. It is difficult. Correct. But there are some good points that you mentioned. You mentioned कि सही mindset होना बड़ा जरूरी है। Self motivation is Yes, it is very important. And I believe even family motivation is very important because आसपास positive environment रहेगा ना, और मतलब family आपको support करते रहेगी चीजों में कि हो जाएगा बेटा, नहीं होगा तो देख लेंगे, मतलब family उतना बोलते ना कि नहीं होगा तो देख लेंगे, तो it is like आधा आप खुश हो जाते हैं, stress कम हो जाता है। Yes, exactly. Okay. And academically, did you face any challenges, जैसे when we are talking about subjects, etc., कोई particular subject? Academically, I believe my biggest challenge was this only. I was very much concerned about that whether am I reading the right content, और मतलब मैं कहीं छूट तो नहीं रही हूँ, कुछ रह तो नहीं रहा है। मैंने सिर्फ 2 बुक्स सोच तो लिया है कि 2 ही पढ़ूंगी, क्रैश कोर्स नहीं लूंगी, I won't join any coaching institute. So I was in that FOMO phase कि भाई कैसे होगा, तो वही एक बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे लगता है। दूसरा चैलेंज पढ़ने को लेके मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है वो तो सब पढ़ते ही हैं, पढ़ ही लेते हैं वाला हिसाब, मुझे ये सिलेबस वाला चैलेंज बहुत बड़ा लगता था मुझे, बिकॉज मैंने पहली बार दिया था और मेरा ऐसा था कि पता नहीं, एंड देयर आर सर्टेन टाइम्स बिकॉज यू आर फ्रेंड्स ऑफ द सेम फील्ड, सो दे टेक टेस्ट सीरीज, दे टेक दिस थिंग्स एंड दे कॉल यू एंड टेल यू कि तुझे पता है आज ये करवाया उन्होंने, वो करवाया, तो अब मैंने वो चीज नहीं पढ़ी है, सो दैट डिस्टर्ब्स योर माइंड अगेन। So how did you find a balance between, because आपके naturally you've been graduating from a nursing background, तो friends वगैरह तो I mean there is an entire cohort जो इसके लिए prepare कर रहा होता है, and if you are not in the usual cohort who takes courses etc., you are a little taken a different path. So what I did was, मेरे जो फ्रेंड्स ने कहीं से कोर्सेज ले रखे थे, I used to be in touch with them कि चलो उनके वहाँ क्या चल रहा है एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। तो आई यूज्ड टू टॉक टू देम रेगुलरली कि टेस्ट सीरीज में क्या चल रहा है, कोर्स में क्या चल रहा है, तो ठीक है थोड़ी बात उनसे पता चल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा है तो फ्रेंड्स है तो बता देते हैं कि ऐसा एक्स्ट्रा है, उन्होंने कहा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तू भी पढ़ लियो, तो वैसे करके आई वॉज इन सिंक विद थिंग्स कि चलो ठीक है आई एम गोइंग द राइट वे। नहीं तो उसने मुझे बता दिया, कोई जैसे देयर वर सर्टेन टॉपिक्स जो मुझे नहीं पता था इंपॉर्टेंट है, बट दे टोल्ड मी कि दिस इज इंपॉर्टेंट यू रीड इट, दिस इज इंपॉर्टेंट यू रीड इट, तो वैसे उनके थ्रू मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे पता चलती थी। दैट वाज माय ओनली थिंग व्हिच आई डिड टू कम आउट ऑफ दिस कि स्टे इन टच विद देम। So you learned from your peers as well. Yes, they helped me a lot through this because they knew I'm giving it for the first time, so they were more concerned than I was about the exam. Okay, you were like a stress-free aspirant कि मैं दे देती हूँ first time, कुछ होगा जैसे होगा। No, I was really stressed because actually I didn't give my previous attempts to this exam, so I could have given the last year exam also, but I left it. I didn't give the exam. I didn't appear for the exam. So I was really stressed कि इस बार देना है और निकालना है, मतलब ऐसा मन में था, but stress बहुत ज्यादा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया सब कि इतना स्ट्रेस में कैसे पढ़ूंगी, ठीक है निकालना है तो पहले पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे निकलेगा तो वाला हिसाब। बट आई वाज रियली स्ट्रेस्ड, बट एवरीबॉडी हेल्प्ड मी आउट रियली वेल थ्रू इट। Yeah, it's good that actually the determination and hard work played well and paid off. Yeah. ठीक है। So Priyanka, when we are talking about NORCET and if we are talking two toppers, हम एक सीरीज बना रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं where a lot of aspirants, nursing students जो दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, a couple of questions in their mind, तो ये कुछ frequently या most asked questions हैं, I would take them forward to you.
And Okay. let's hear from you your thoughts on it, because now that you've cracked nursing and you're serving as a nursing officer also, so your insights would be beneficial to our audience, I think. Yeah. So one of the most asked questions is that how difficult is it to get into AIMS? See, that I believe is like a subjective thing. Mm-hmm. If a person's, I believe if the person's basics are clear, it is, if you like, if your basics are clear and you study, like you put your work into it, you will get into AIMS easily. But like if you don't have clear basics, so first work on your basics and then work forward and you'll get through it, I believe. मतलब समझ रहे हो? It is not like a, it is a big thing, but if we work diligently on a straight path, I believe one can get through it easily. So मतलब tension लेने वाली बात नहीं है. हो जाएगा, just stay at it. Yeah. That's nice. Is it possible to crack NORCET in 6 months? Is our next Yeah, question. I'm the biggest example. One can easily crack nonsense. That too, I said it depends on your preparation, your basics, and one can crack it, of course, if you work the right way. Because I have certain friends as well who have cracked NORCET while they were working in some other institution. So if a working professional can crack it, and I think one can do it easily. Okay. Not, I would not say easily. That would be actually very this thing, but हाँ, मतलब आप कर सकते हो So in अगर your आप सही से काम करो. in your individual case, were you, while you were studying for an OSCE, stayed a student, or were you also working elsewhere and then managing your hours? No, I was not working. I was at my place only. मैंने drop कर रखा था, तो मैं घर पे ही थी. I was not working at the time. इसीलिए मैं दिन में खाली होती थी बिल्कुल पढ़ने के लिए. Okay, and that's a big factor कि आप 3 महीने में इसके लिए भी pull off कर पाए. Probably ये थोड़ा और tough हो हाँ, जाता अगर आप कई अगर मैं काम वर्क कर रही होती. Yes, exactly. मैं 3 महीने में इसलिए भी कर पाई because मेरे पास और कोई टेंशन नहीं थी, खाने की नहीं, कुछ की नहीं. घर पे हूँ, comfortable environment है, सिर्फ पढ़ना है. मतलब Right. 3 महीने सिर्फ पढ़ा. That's nice. Our next question is, which is the best book to refer for NORCET? I personally have read Target High and PR Yadav, and I believe मुझे PR Yadav पता नहीं था कि that is the book and it is good, but it is a really good book. One should definitely see it after Target High, because Target High पढ़ने के बाद आपको एक बार लगेगा, आप जब PR Yadav खोलोगे उसमें MCQs हैं कि बहुत easy MCQs हैं, basics से हैं, but आप करते जाओगे तो हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के उसमें मतलब इट्स लाइक 300, 350, 400 MCQs होते हैं, तो उनमें से फॉर श्योर मेरे हिसाब से 50-70 MCQ ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे. तो मतलब उन 70, 60, 50 चीजों में से एक चीज आपको एग्जाम में आ जाए और वो आपको आती हो, तो इट इज अ प्लस पॉइंट ओनली अकॉर्डिंग टू. So you तो would मेरे लिए suggest दोनों बुक्स. दोनों books. हाँ, मतलब मेरा हिसाब मैंने कैसे करती थी कि टारगेट हाई पढ़ा, जैसे कि अगर मैंने ऑब्स एंड गाइन टारगेट हाई से पढ़ा है, तो उसके बाद टारगेट हाई का कंटेंट पढ़ा, टारगेट हाई के एमसीक्यूज किए, टारगेट हाई के एमसीक्यूज करने के बाद, और मैं टारगेट हाई में भी ऐसे करती थी कि कंटेंट में जो पढ़ लिया, तो एमसीक्यूज में जो चीजें कंटेंट से ही हैं उन्हें मैं वैसे वैसे ही देख लूंगी कि मैं सही आंसर कर रही हूँ या नहीं, और जो चीजें बिल्कुल कंटेंट से बाहर है पीछे टारगेट हाई में, उन्हें मैं सर्कल कर देती थी वहीं कि रिवीजन करते हुए सिर्फ इन चीजों को पढ़ूंगी कि बाकी मैं पीछे कंटेंट में पढ़ चुकी हूँ. देन आई यूज्ड टू गो टू पीआर यादव. तो पीआर यादव में भी आधी चीज, अब तुम इतना सारा कंटेंट पढ़ चुके हो यहाँ से कंटेंट भी और एमसीक्यूज में से, अब पीआर यादव में तुम्हारे एमसीक्यूज और कम हो जाएंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे. सो मैंने बोला 30, 40, 50 एमसीक्यू ही होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट में जो तुम्हें नहीं आते होंगे आफ्टर रीडिंग दिस मच. तो मैं उन 30, 40, 50 एमसीक्यू को वहीं राउंड कर लेती थी कि रिवीजन करते हुए आई विल रीड ओनली दिस मच, बिकॉज तभी तुम्हारी रिवीजन सही से हो सकती है, वरना तो सब पढ़ते रह जाएंगे अगर वापस पढ़ने पे आएंगे तो. ऐसे करके मेरा रिवीजन बहुत ही सॉर्टेड हो गया था कि मतलब कंटेंट पढ़ा, फिर टारगेट हाई में जो एमसीक्यू सिर्फ सर्कल किए हैं वो पढ़े, फिर पीआर यादव में सिर्फ जो सर्कल किए हैं वो पढ़े. रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है चीजों को फालतू में. Majority content आप पहले टारगेट हाई से पढ़ते थे, MCQs, and then PR यादव again for more practice. हाँ, because it has previous year MCQs actually सारे एग्जाम्स के, तो that is good. आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है दुनिया में क्या आ रहा है. So you wouldn't want to pick one out of the two as a best book. आपके individual नहीं, मेरे हिसाब से yeah, both of them were really important, equally important I say. Okay. So you mentioned a couple of terms जो कि हमारे earlier questions में भी है, that we would like to break each of these questions down. ये एक question that says how important it is to refer to PYQs, which is previous year question papers, MCQs, and notes.
तो इसको आप हमें टेक अस थ्रू बाय वन. लेट्स टॉक अबाउट PYQs फर्स्ट. So see, previous year questions are really good because आपको समझ में आता है कि कौन चीजें पूछ क्या रहे हैं और आप पढ़ क्या रहे हो. जैसे कि चाहे IRF हो, मतलब मैं टारगेट हाई से कंटेंट पढ़ती थी, तो चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंटेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं से भी कंटेंट पढ़ रहे हो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेट्स यू नो कि आप सही पढ़ भी रहे हो, मतलब जो आ रहा है आप वो पढ़ भी रहे हो या आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो. सो दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड आप बहुत सारी नई चीजें पढ़ते हो, सीखते हो. मतलब मैंने पर्सनली, मेरे लिए तो बहुत कुछ नया सीखने मिलता था जब मैं PR यादव करती थी. तो इवन टारगेट हाई में भी वो लोग बहुत सारे MCQs दे हैव मेंशन कि ये इस एग्जाम में पहले क्वेश्चन आ चुका है, इस एग्जाम में आ चुका है. तो यू नो द फॉर्मेट. आई बिलीव इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट कि अच्छा यार इसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एम्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्सेट में ऐसे क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम. सो आपको वो चीज समझ में आती रहती है. फिर आप आपका ब्रेन उस हिसाब से मॉडल होता रहता है कि एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है. हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है. एग्जैक्टली. तो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है कि ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं, इस हिसाब से पढ़ना है. करेक्ट. बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर टाइम नहीं है तो हमें हार्ड वर्क के साथ थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है. एग्जैक्टली. सो दैट इज द स्मार्ट वर्क वी कैन डू. सो आपने रफली सिंस व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ आपने कितने PYQs और कब से आपने रेफर करना चालू किया? See, as I told you, मेरा सिंपल था कि टारगेट, मतलब मैंने अपने कंबाइंड स्टडी दोनों से करी. तो मेरा सिंपल था कि कंटेंट पढ़ो, टारगेट हाई का MCQ करो, उससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना क्या चल रहा है. देन गो टू PR यादव. तो साथ ही में स्टार्टिंग से ही मैंने चीजें साथ साथ में करी साइमल्टेनियसली, ताकि ऐसा बिकॉज सी अगर आप बहुत टाइम बाद PYQ देखोगे, जैसे मैंने आज पीडियाट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, और मैं PYQ PR यादव खोल के बैठी हूँ कुछ 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, या अगले महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगी. सो मैं कंटेंट भूल चुकी हूँ अभी तक ना, तो उससे आपको रिवीजन में भी प्रॉब्लम आएगी. सो मैंने इसीलिए ये वे आउट किया कि मतलब साथ ही साथ सब कुछ कर लो, तो यू विल रिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू विल नो कि यहाँ पे क्या है और वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा. अदरवाइज क्योंकि मैंने पहले एक बार ऐसे किया था, सब्जेक्ट पहले कर लिया और MCQs बाद में किया, तो दैट gave me a problem because मेरी PR यादव मैंने ऑर्डर की थी, वो लेट आई थी, तो मैं समझ गई कि साथ ही साथ करना है. एंड डेली प्रैक्टिस भी हो जाता था. हाँ, डेली प्रैक्टिस भी हो जाता है. यस, एग्जैक्टली. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज मच बेटर देन चीजों को बाद में करना, बिकॉज बाद में तो आप टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो खुद को टेस्ट करने के लिए. प्रीवियस ईयर साथ साथ में करोगे तो आपको उस चैप्टर में से क्या कंटेंट किस तरह से, आप मान लो कि आपने कुछ कंटेंट अलग तरह से पढ़ा है और आपको प्रीवियस ईयर करके समझ में आ रहा है कि कंटेंट अलग तरह से पढ़ना था, तो वापस वही रिवाइज कर लो. आपके दिमाग में चीजें अभी हैं ही, आपने कल ही परसों तो पढ़ा है, तो आप चीज को वापस पढ़ लोगे उस वे में जिस वे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपके लिए वापस लर्न करना और इजी हो जाएगा. जितना टाइम बीच में डालोगे उतना ज्यादा मेमोरी पीछे जाती रहेगी लॉन्ग, मतलब समझ रहे हो. Yeah. So you mentioned PYQ should be done while you're doing the content. At least this was your approach, and you can do the mocks later on. So coming to mocks, ये हमारा second part of the question था. Tell us more about that. See, I took a test series as I told you कि मैंने सेकेंड मंथ से मैं बीच बीच में करती थी अपने मूड के हिसाब से, बट थर्ड मंथ में आई वाज रियली रेगुलर विद इट कि मतलब रोज का एक मॉक करना ही करना है. लास्ट मंथ में, यस, मतलब 1 month टू नॉर्सेट वाला टाइम. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि अब मैंने सोच रखा था कि सुबह रिवीजन करूंगी या शाम को रिवीजन करूंगी, और मतलब दोनों में से जिस भी आवर में रिवीजन करूंगी उसके ऑपोजिट टाइम में टेस्ट सीरीज करूंगी. तो जो मैं एक टेस्ट करती थी तो 3 घंटे का टेस्ट होता है. टेस्ट ना अगर आपको आता है नहीं आता आपको पता चल जाता है, तो 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा आपका टेस्ट. ठीक है, 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाएगा. उसके बाद आई यूज्ड टू सी उसके सॉल्यूशंस कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या हुआ. अच्छा, सिर्फ मॉक देना नहीं, यू एनालाइज्ड एंड वर्कड ऑन इट. या बिकॉज़ इफ यू डोंट सी कि आपने क्या गलत किया है, कैसे गलत किया है, तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है उसका देके ना. फिर तो आप रियल एग्जाम भी ऐसे ही देके आ जाओ. इट इज देयर इज नो प्रॉब्लम. आप वो कर ही क्यों रहे हो इतनी मेहनत मॉक देने में. सो आई यूज्ड टू सी थिंग्स कि मैंने गलती की, जो मतलब क्वेश्चन मुझे स्पेशली लग रहा था कि मतलब ये सही ही करा है, तो मैंने वो गलत क्यों करा. तो मैंने ये एनालाइज किया स्टार्टिंग कुछ टेस्ट में कि मैं क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ती. कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को ही गलत पढ़ देती हूँ और उसको मैं ऑप्शन गलत चूज कर लेती हूँ. तो मतलब देन आई वर्कड ऑन इट कि चलो ये चीज सही करी. देन आई डिसाइडेड कि मुझे गैस कम करने हैं. मैं गैस बहुत करती थी स्टार्टिंग में, तो मैंने थोड़ा वो कम करा कि ऑप्शंस को थोड़ा एनालाइज करके फिर चूज करो. ऐसे बिल्कुल वो करने की जरूरत नहीं है. देन उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो मैं करती थी वो थी, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते होते थे, तो मैं उनको वहीं वहीं लर्न कर लेती थी. स्पेशली टेस्ट सीरीज हेल्प में, मतलब जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे तो मोस्टली आंसर्स आपको आते ही होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है. और मेरे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स बहुत वीक थे कॉलेज से ही,
इट्स नॉट लाइक टुडे, दे आर वीक सिंस कॉलेज। Okay. सो वो मुझे वहीं पे मैं मतलब जितनी टेस्ट सीरीज करी है मैं सब कुछ वहीं याद कर लेती थी, उसके सॉल्यूशंस को, तो जितना जितना कंटेंट। हर टेस्ट सीरीज के साथ आप कुछ ना कुछ नया सीख के यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन योर अप्रोच। या एग्जैक्टली, आई वाज ट्राइंग टू डू दैट। और कंटेंट भी मुझे लगता है यू लर्न अ लॉट ऑफ कंटेंट बाय रिवाइजिंग दैट टेस्ट, बिकॉज पीपल थिंक कि दिन में 3-4 घंटे एक टेस्ट को क्यों देने हैं, मतलब समझो, बट आई बिलीव इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो उसी अप्रोच से बना रहे हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो उनके सोल्यूशंस होते हैं दे आर रियली थरो, क्योंकि उसके आंसर में उन्होंने पूरी चीज एक्सप्लेन कर रखी होगी। तो आप जब आपने पढ़ा हुआ कंटेंट दोबारा एक बार पढ़ लोगे तो रिविजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है वो दोबारा पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, आपका ही फायदा है हर बात में। Correct. So the third portion is when we are talking about notes making. बहुत सारे notes होते हैं, खुद भी notes बनाते हैं, उसमें क्या approach था? What is it? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बहुत नोट्स बनाए, मैंने सिर्फ नोट्स बनाए थे ऑब्स गाइन के, क्योंकि मैं उसको मेन बुक से पढ़ रही थी। Okay. तो उसके नोट्स मेरे पास वैसे थे। टारगेट हाई में मेरा बहुत सिंपल था कि उसका रेफरेंस कंटेंट तो मैं वैसे वैसे पढ़ती थी, जहां मेरा एज आई टोल्ड यू कि जहां मुझे लगता था कि ये चीज बहुत छोटे में दे रखी है, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेजुएशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और यहाँ इन्होंने छोटे में दे रखी है, तो उसको मैं गूगल करके, बिकॉज मेरे पास बाकी बुक्स थी नहीं, तो गूगल करके उसके नोट्स में वही लिख देती थी। सेम गोज फॉर एमसीक्यूज, जब मैं एमसीक्यूज करती थी चाहे पीआर यादव से चाहे टारगेट हाई से, सो आई यूज्ड टू डू द सेम। अगर मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक पढ़ा नहीं है या ये टॉपिक बहुत छोटे में दे रखा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं उन्होंने प्रीवियस ईयर के, यहाँ से पर पीछे नहीं दिया है, सो गूगल करके उसके नोट्स बना के आई यूज्ड टू पेस्ट इट देयर ओनली, ताकि रिवीजन करते हुए आपके पास एक ही बुक है, इट इज इजी, आपके लिए उतना इजी ज्यादा रिवाइज करना अगर एक ही किताब में सब कुछ है तो। और खुद का लिखा हुआ याद भी होता है थोड़ा। हाँ, खुद का लिखा हुआ याद भी होता है, यस, दैट वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। Yeah. Did it work for you? See, it depends. Like for me, तो it everything worked. बुक का लिखा हुआ भी चल रहा था, खुद का लिखा हुआ भी चल रहा था, because I didn't have the time सब कुछ खुद से लिखने के लिए. So it everything worked fine for me. Oh, that's nice. Okay, these were some of our most asked questions, and we spoke a lot about Norset. But before we get to the end of the video, what's that one advice or like one strategy or one message that you would like to share with nursing aspirants to be able to crack Norset and get to a place where a lot of rankers and nurses are right now? See, what I would say is not academic. I would just say stay calm, because in stress you would not be able to do anything, not only in Norset but in life as well. So stay calm and work on whatever you're trying to work on, and you'll get through it for sure. I got through it with the same thing, so you will also get through it. That is all I want to say. Like one thing if you ask me. Because calm is very important. Staying calm. Same mindset, pacify होना, calm रहना. Nice. Yes. Because otherwise कुछ याद नहीं होता है. Yes. Well, that was lovely. We are almost at the end of this session, Priyanka. We are hoping to have a lot of more of this from you and learn via you in a lot of contents, and I'm hoping कि ये वीडियो देख के बहुत सारे viewers भी inspire होंगे, उनको benefit होगा, helpful होगा. So thank you for coming here and sharing your journey with us. Yeah, thank you to you too, Raghav, and your team. Yeah, thank you to Unacademy. So for the viewers, thank you for watching our topper session. हम ऐसे ही बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे आपके सामने with multiple toppers, multiple AIRs, experts. तो हम ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट हमारे YouTube चैनल पे लेके आएंगे, which is called Unacademy's nursing channel is newly launched. It's called Let's Crack Nursing Exams. So if you have liked the video and this conversation, अगर आपको अच्छा लगा, आपको इसमें से कुछ benefit हुआ, तो please इस वीडियो को definitely like करना and subscribe to our channel so that you do not miss any updates, and you'll get all the more content that we're creating for you all to crack nursing exams, especially Norset 2023. Thank you guys. Thank you, Priyanka. Thank you, Raghav.